again another important scheme that we are going to deal today is remission of duties and taxes on exported products scheme, RODTEP. Now what is remission of duties and taxes? Okay, remission of duties and taxes का मीनिंग होता है टू remit का मतलब to provide for, like it's a kind of subsidy kind of scheme. ठीक है, तो first of all we'll look की story क्या है and then we'll try to understand कि ये है क्या चीज. This is a clip from the Hindu. India loses export incentive case filed by US at WTO. It is the news of November 1, 2019. In November of 2019, India lost a case against United States of America in WTO dispute settlement mechanism under the agreement of subsidies and countervailing measures. अब ये इतना सारा जो बोला उसका मीनिंग क्या है, ठीक है. तो WTO we understand कि what is WTO and how it functions. WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम है टू कीप द वर्ल्ड ट्रेड फ्रीयर मतलब टू रिस्ट्रिक्ट और लिमिट द बैरियर्स इम्पोज्ड बाय द कंट्रीज फॉर द ट्रेड, ठीक है. तो वहां पे अगर कोई कंट्री जो कि WTO की मेंबर है वो दूसरी किसी कंट्री के लिए बैरियर इंपोज करती है, ट्रेड बैरियर क्या होते हैं, तो अगर हम ट्रेड बैरियर समझने की कोशिश करें, ट्रेड बैरियर, ओके. तो ट्रेड बैरियर there are two kind of true trade barriers. The first one is quota, ठीक है. The second one is tariffs. Quotas and tariffs. तो what is quota? Quota मतलब assigning a specific volume of trade to be conducted. What is tariff? Assigning a specific rate of tax or duty, ठीक है. So these are two kind of trade barriers that countries offer. अब इसको अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में देख लें, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स को, तो ये ऐसे फंक्शन करते हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज वन कंट्री इंडिया एंड अदर कंट्री USA. तो WTO says that the trade between its member countries should be free मतलब okay, the first statement is the trade should be free. The second statement is both the countries should give each other most favorable nation का status. अब most favorable nation का status meaning कि इंडिया कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट USA with respect to other countries and with respect to the domestic companies itself. Understood? This is the concept of most favored nation. मतलब अगर इंडिया इंडोनेशिया को, if India is extending some kind of trade incentives to Indonesia, okay, India will have to extend the same kind of trade incentive to USA as well. This is because if otherwise USA trade will be hurt with India, and this is the like aim of WTO to reduce the trade anomaly and offer equalized like harmonized trade so that the trade is freer. Okay, free trade, free world establish करने की कोशिश है. Okay. Similarly, if India is giving preference to a domestic company by law, ठीक है, अगर Indian people choose to go for some domestic company with respect to some US company, then it is okay. But if Indian government forcefully tries to provide some incentive to domestic manufacturer with respect to some US manufacturer, then that will be trade distortion. ठीक है, तो ये तो basic kind of trade distortions होगा. Now if you try to understand what is trade barrier and what is in the sense of quotas and tariffs, so if USA imposes some kind of trade tariff कि मतलब अगर if USA is exporting some good, for example iPhones, ठीक है, and if India imposes heavy custom duty, okay, heavy custom duty, so this custom duty will increase the cost of iPhones in India,
and hence reduce the sales of iPhones in India. Okay. So this kind of custom duty will be called what? Trade tariff barrier. Tariff barrier, okay. But what if India says that you can only export 10,000 iPhones in India? What if India tells Apple operating in USA that you can only sell 10,000 iPhones in India? So, but similar kind of quota is not being offered to some Chinese company. Chinese companies are being allowed to sell as many phones as they want. ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेड डिस्टॉर्शन क्रिएट हुआ. तो दिस काइंड ऑफ कोटाज इज नॉट अलाउड अंडर द WTO मैकेनिज्म. ये तो हो गया WTO मैकेनिज्म. अब we will see a bit about subsidies and countervailing measures. Subsidies and countervailing measures. Okay. Now what is a subsidy? ठीक है. What if India, ठीक है. What if India, this is India, right? India का, Indian government का एम है कि like make in India concept, ठीक है. Make in India means manufacturing in India should be promoted. अगर एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने के लिए व्हाट इफ इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. ठीक है, अगर इंडियन कंपनीज जो एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, द कंपनीज हु आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स देम हैवी सब्सिडीज देन देयर कॉस्ट्स रिड्यूस. ठीक है, अब यही कंपनीज दूसरी कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल यूएसए में, आराम से अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगी. क्यों? क्योंकि यूएसए में ही मैन्युफैक्चर्ड सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, उससे इंडियन कंपनीज का प्रोडक्ट लो प्राइस्ड होगा, बिकॉज बहुत सारा इसका प्राइस गवर्नमेंट ने ही रिमिट कर दिया है मैन्युफैक्चरर को. ठीक है, अगर मान लो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपीज आ रहा था पर यूनिट और गवर्नमेंट ने कहा मैं आपको 30 रुपए की सब्सिडी दूंगा, तो ये 70 रुपीज का हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई. अगर इस पे 70 रुपीज पे 20 रुपीज भी अपना मार्जिन लेके चलता है मैन्युफैक्चरर, तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी? 90 रुपीज. अगर सिमिलर गुड 90 रुपीज का यूएसए में 100 रुपीज का मिल रहा है, 100 रुपीज प्लस 20 रुपीज का प्रॉफिट कॉस्ट, तो 120. ठीक है, दोनों सिमिलर गुड्स हैं. यूएसए की डोमेस्टिक इकोनॉमी में इसका कॉस्ट 120 रुपीज है, इंडियन गुड जो गया उसका कॉस्ट 90 रुपीज है. कौन सा ज्यादा बिकेगा? ऑफ कोर्स इंडियन गुड. दिस इज व्हाट हैपनिंग विद चाइनीज मोबाइल फोन्स इन इंडिया, बिकॉज चाइनीज मोबाइल फोन्स आर वेरी सब्सिडाइज, लाइक उनका कॉस्ट बहुत लो है. तो अब क्या हुआ कि 90 रुपीज में बिक गया ये, तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर यूएसए के हैं दे आर फेसिंग लॉस. ठीक है, तो subsidies and countervailing measures of WTO mechanism say that India cannot provide trade distorting subsidies, trade distorting production or distorting export subsidies under Article 3.1 basically. ठीक है, तो subsidies and countervailing measures have been mentioned under the WTO. ठीक है, which prohibit the trade distorting export subsidies to the domestic manufacturers of any country. तो now we will see कि इंडिया कैसे केस हार गया और कौन सी स्कीम्स थी जो इसमें इंडिया केस हार गया. ठीक है, लाइक MIES, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, MIES. ठीक है, मर्चेंडाइज MEIS MIES, ठीक है, कुछ भी, मर्चेंडाइज इंसेंटिव एक्सपोर्ट स्कीम. व्हाट हैपेंड इन दिस स्कीम वाज, मर्चेंडाइज मतलब फॉर एग्जांपल क्लोथ्स. ठीक है, इसके अंदर क्या था कि इंडिया है ये इंडिया क्या करता था, अपने जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फॉर एग्जांपल क्लोथ एक्सपोर्टर्स, फॉर एग्जांपल वी कैन कंसीडर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स. टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को इंडिया क्या करता था कि स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड करता था. ठीक है, स्क्रिप्ट्स मतलब एक पर्ची काइंड ऑफ, कि अगर आप 100 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका 5% तक हम आपको एक पर्चा बना के दे देंगे, और ये पर्चा आप 100 करोड़ का 5%, ठीक है, मान लो 5 लाख रुपीस हुआ, नहीं 5 करोड़ हुआ, राइट, 100 करोड़ का 5% 5 करोड़,
मतलब आपने 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको एक बिल दे दिया, एक पर्चा दे दिया जिसपे लिखा है कि इस पर्चे की वैल्यू है 5 करोड़। इसको क्या कर सकते हो आप, यू कैन गिव दिस टू समवन हु इज इंपोर्टिंग समथिंग, ओके, हु इज इंपोर्टिंग समथिंग। अब इंपोर्ट करने पे क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी, ओके। दिस कस्टम ड्यूटी, ओके, either you can pay your own custom taxes through this 5 crore or you can sell it in the open market as well. You can sell it in the open market. For example, ये टेक्सटाइल एक्सपोर्टर जो है ये 100 करोड़ के कपड़े बाहर भेजता है और इसको 5 करोड़ का रिबेट मिलता है। अब ये रिबेट क्या करता है, ये ये बेच देता है किसी क्लोथ मैन्युफैक्चरर को, ठीक है, क्लोथ मैन्युफैक्चरर को। किस लिए पे करता है? ये कहता है कि ये 5 करोड़ रुपए मुझे तो बिना कॉस्ट के ही मिले हैं, मैं कहता हूं इनको 4 करोड़ में ही बेच देता हूं, 4 करोड़ में ओपन मार्केट में बेच देता है। ये कौन खरीदता है? क्लोथ मैन्युफैक्चरर। क्लोथ मैन्युफैक्चरर को कोई मशीन इंपोर्ट करानी है यूएसए से, ठीक है, अगेन यूएसए से कोई बड़ी मशीन इंपोर्ट करानी है, इस कपड़ा, इस जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर उसको कोई बड़ी मशीन इंपोर्ट करानी है यूएसए से। अब जब वो मशीन इंपोर्ट कराएगा तो उसको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो अगर ये बंदे को मान लो 4 करोड़ की कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, मतलब 4 करोड़ की कस्टम ड्यूटी पे करनी है, इफ ही परचेजेस दिस स्क्रिप्ट फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है, तो स्क्रिप्ट की वैल्यू कितनी? 5 करोड़। इस पर्सन ने परचेज कितने की? में 4 करोड़ में। 1 करोड़ का बेनिफिट इसे हुआ और 4 करोड़ का बेनिफिट इस बंदे को हुआ जिसने बेचा। अंडरस्टूड? दिस वाज हाउ MEIS वर्कड इन इंडिया। MEIS में क्या था कि एक्सपोर्ट वैल्यू का 5% तक गवर्नमेंट ऑफर्ड स्क्रिप, एक्सपोर्ट स्क्रिप कहते हैं उसे, which was later sold to some importer who used that script to pay what? Custom taxes for importing something from other countries. Understood? तो अब अगर यहाँ पे ये डिवाइस इंपोर्ट कराने का कस्टम टैक्स 5 करोड़ रुपीस था, बट दिस स्क्रिप्ट was purchased at rupees 4 crore only. Understood? So this person can pay the value, this person can simply show this script to the what? Custom officials and say that ये ले लीजिए, आप स्क्रिप्ट ले लीजिए और 5 करोड़ का मेरा पेमेंट हो गया। बट इस पर्सन ने ओपन मार्केट में इसको परचेज कितने पे किया था? 4 करोड़ में ही परचेज किया था। मतलब आप क्लोथ मैन्युफैक्चरर को भी इंसेंटिव दे रहे हो, क्लोथ एक्सपोर्टर को भी इंसेंटिव दे रहे हो, which is actually distorting the price of, this will actually make the price of domestic manufacturing low in India as compared to the USA, and this will distort the export of, this will distort the international price, like this will keep the price of goods manufactured in India low as compared to the other economies. ठीक है, तो USA dragged India to the WTO settlement mechanism, ठीक है, इंडिया, दिस वाज ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, ठीक है, तो इंडिया लॉस्ट द केस इवेंचुअली MIES में, एंड देन MIES also and special economic zone scheme also. In both cases, India lost the case and India has to now rationalize their subsidy schemes. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अब RODTEP स्कीम लाई है, विच इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। RODTEP स्कीम में क्या है? RODTEP स्कीम में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्सपोर्टर, this is manufacturer. For example, if manufacturer is only the person who is exporting, ठीक है, तो अब एक्सपोर्ट सब्सिडीज तो नहीं दे रही है, लाइक कस्टम ऑफिशियल्स वाली जो सब्सिडी है उसको तो खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन क्या किया कि जो तुम्हारी इनपुट में जितनी इनपुट में, फॉर एग्जांपल फ्यूल है ना, फ्यूल टैक्स, ठीक है, या कोल टैक्स, या ऐसे जो भी इनपुट टैक्सेस थे उनको रिफंड कर देंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको ये टैक्सेस जो थे वो आपको रिफंड कर देंगे GST मैकेनिज्म, ऑनलाइन मैकेनिज्म के थ्रू, और आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। मतलब अगर किसी गुड का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ₹100 आ रहा था,
ठीक है, अब इस 100 में मान लो 30 रुपीज टैक्स था जो कि इस टैक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये 30 रुपीज आपको दे देंगे, ठीक है, सो दैट आपका स्टिल मैन्युफैक्चरिंग जो है 70 रुपीज पे ही आएगा, विच विल कीप योर प्रोडक्ट लो प्राइस्ड एंड यू कैन एक्सपोर्ट इट. This is WTO compliant. WTO does not disallow the input tax credit, okay, but it disallows custom tax credit. ठीक है, custom tax का input tax credit जब मिलेगा तो that is not allowed under the subsidies and countervailing measures because that is dependent upon the exports. ठीक है, क्योंकि वहां पे जो अगेन जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स थी, फॉर एग्जांपल जो हमने अभी एग्जांपल में देखा था कि 5 करोड़ का ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिल गया, दैट वाज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, कि अगर आप 100 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट कर रहे हो, राइट, इफ यू आर एक्सपोर्टिंग फॉर द वैल्यू ऑफ रुपीस 100 करोड़, इसका 5% कितना हो गया, 5% कितना हो गया, 5 करोड़ हो गया. तो ये 5 करोड़, ये दिस 5 करोड़ डिपेंडेड अपॉन द एक्सपोर्ट वैल्यू, तो दैट इज डिसअलाउड. Any subsidy that depends upon the export performance, that is not allowed. Okay, but manufacturing वाला जो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हम RODTEP देख रहे हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग के इनपुट में, ना कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पे. अंडरस्टूड, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के ऊपर हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के अमाउंट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट है. मतलब एक कंपनी चाहे कितना ही एक्सपोर्ट कर ले, है ना, अगर वो मैन्युफैक्चर जितना करे, सॉरी व्हाट दिस इज, आई डोंट नो, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन RODTEP एंड MEIS. we'll look into that. MEIS and RODTEP. now WTO bans any kind of subsidy that depends upon the export performance under subsidies and countervailing measures. Article 3.1A section में कहा है, article, okay, we will talk about that also. WTO says that under article 3.1A of SCM, subsidies and countervailing measures, says that any kind of subsidy जिसका वैल्यू डिपेंड करता है एक्सपोर्ट के वैल्यू पे, that is disallowed. अब हम देखेंगे MEIS में क्या था. MEIS में ये था कि अगर कोई एक्सपोर्टर 100 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दे दी जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उस 100 करोड़ का 5%. ठीक है, तो अब यहां पे हमने देखा कि 3.1A को वायलेट कर रहा है. हाउ? क्योंकि ये जो टैक्स क्रेडिट मिला है ना, ये जो 5 करोड़ का इसको बेनिफिट मिला है, वो किस पे डिपेंड करता है, इसके एक्सपोर्ट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है. क्योंकि अगर एक्सपोर्ट 50 करोड़ का कर रहा होता तो ये 2.5 करोड़ ही मिलता. ठीक है, मतलब अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा तो ये अमाउंट ऑफ सब्सिडी अर्न्ड विल आल्सो इंक्रीज. अंडरस्टूड? अगर एक्सपोर्ट, मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है द सब्सिडी दैट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग. इसीलिए दिस इज अ वायलेशन ऑफ WTO. ओके, गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरी स्कीम ले आएंगे. RODTEP में क्या है कि ठीक है भाई, ये है मैन्युफैक्चरर और यही एक्सपोर्टर मान लो, है ना, कपड़े का बनाते भी हैं और USA भेजते हैं. अब इनको क्या करो, एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस पे तो मत दो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे दे दो, इनपुट पे दे दो. इनपुट टैक्स में इन्होंने जितना टैक्स लगाया है उस पे इनको क्रेडिट दे दो. तो अगर मान लो 100 रुपीज पर यूनिट पड़ रहा था तो उसमें से 30 रुपीज टैक्स, इनपुट टैक्स लग रहा था, तो ये 30 रुपीज इनको पर यूनिट ट्रांसफर कर दो. तो अगेन इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी 70 रुपीज पे, और एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इट विल ऑलरेडी बी लो प्राइस्ड इन द मार्केट ऑफ USA. तो दिस इज लाइक डूइंग दिस, कान पकड़ना हाथ घुमा के, राइट? बट बाय डूइंग दिस लाइक ट्रिकरी, India is avoiding the WTO 3.1 under the subsidies and countervailing measures. तो ये RODTEP और MEIS में यही डिफरेंस है. RODTEP is WTO compliant, but MEIS is not WTO compliant. तो I hope you understood this interesting topic. हाँ, तो government has now provided the rate of rebate जैसे 0.5% से लेके 4.3% of export value. That again RODTEP में
आप जितना एक्सपोर्ट कर रहे हो राइट, उसका डायरेक्टली गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स के बेसिस पे नहीं, बट आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो उसका रेट कितना होगा 0.5% से 4.3%। ये एक्सपोर्ट वैल्यू जो लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, ये नहीं कि आपने बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग कर लिया और आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारे मैन्युफैक्चर तो कर लिया लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आप स्टिल यू कैन नॉट क्लेम द टैक्स क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये RODTEP स्कीम है ही एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। या ये भी है कि आप बहुत सारा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप बहुत सारा भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, उसकी भी एक लिमिट है, कहां तक कर सकते हो, 4.3% तक ही कर सकते हो। अंडरस्टूड? अब कौन कौन से सेक्टर्स एग्जेम्प्ट रखे गए यहां से? स्टील, फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स, SEZ एंड एक्सपोर्ट यूनिट have been excluded from this। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट RODTEP की स्कीम के बारे में ये है कि सर्विसेज सेक्टर हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इनटू इट। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट RODTEP scheme। Again a question with reference to the international trade of India at present, this question I have not provided this question for you to answer, ठीक है, I have provided, this is again a previous year question from UPSC prelims, I have provided this for you to introspect and make a judgment कि what kind of questions UPSC is expecting, what kind of knowledge. This question can be answered only after making a reading of Economic Survey of India। तो इकोनॉमिक सर्वे आप जब पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सेक्टर डोमिनेट कर रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर पीछे है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कैसा है, ये सारी चीज़। तो दैट इज वाई इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम 2 को पढ़ना बहुत जरूरी है फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। तो आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है, आई लीव दिस टू यू, मार्क द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टेलिंग द आंसर, ठीक है।